Afternoon, this is Arpit Sharma and you are watching my YouTube channel Dream Success. This is my first video and I am talking about physics lecture, that is motion. That what is motion? Yes, talking about with written lecture. As we all know that what is motion. Everybody know? Yes. And I am watching you all of you that what is motion with a written lecture. Yes. Can anybody told me what is motion? Yes, yes, yes. Come on. Give me comment. Yes. As we all know, students, and that motion is of any type. Motion whether can be a random or physically any stationary object having a motion. What when we talk about the proper definition for the motion, we define it as, बच्चों ध्यान से सुनना, ये मोशन होता क्या है. बेसिकली जो 7 चैप्टर्स, जो 7th क्लास में जो स्टैंडर्ड्स में जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है, जो न्यूमेरिकल को लेके मेरे पास वीडियोस आए कि मोशन होता क्या है. मोशन, नाउ द आई एम डिफाइनिंग द मोशन इन वेरियस इजी वे. अ मोशन, sorry, a motion when an object changes its position with time as compared with a stationary is said to be motion. ओके क्लियर गाइस. मोशन क्या होता है? मोशन तब होता है बच्चों जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आती है. जैसे व्हेन वी सी अ एग्जांपल दैट बुल इज पुशिंग और पुलिंग अ कार्ट. यस, we are talking about what is pushing pulling. That bull is pushing or pulling the cart. The cart, all of you know that when a push pull is applied on an object or force is applied on an object, there can be a motion. Yes, okay, clear guys. There is a change in the stationary object. Means it is came into the motion. Okay, clear guys. Okay. बच्चों से नोट कर लो. ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं दे व्हाट दैट कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं. यस, अपने सिलेबस में जो कि 7th स्टैंडर्ड्स का सिलेबस में जो टीच कर रहा हूँ आपको, जो पहला लेसन जो मेरा इस क्लास का है वो मेरे 7th स्टैंडर्ड से है. देखिए हमारे 7th स्टैंडर्ड में जो 5th टाइप और 5 टाइप्स के जो मोशन दिए गए हैं वो these are as follows. First about transversal motion, rotatory motion, oscillatory motion, random motion and periodic motion. Yes, can anybody told me fast what is translatory motion, rotatory? Can anybody know? Can type it in comment. Yes, now I am defining what is translatory motion. ध्यान से सुनिए बच्चों. ट्रांसलेटरी, जैसे कि मैं वर्ड ही बता रहा है कि वो ट्रांसवर्सल टाइप है. मीन्स द ट्रांसवर्सल लाइन इज इन मैथमेटिक्स. यस, ऑल ऑफ यू नो. यस, ट्रांसवर्सल मोशन, अ मोशन इन अ लाइन. यस, अ वे दैट every point of object moves through the same distance at same time. बच्चों, motion is said to be translatory. Yes, ट्रांसलेटरी तब होता है बच्चों जब मोशन है
जैसे कि पुश और पुल जो कार्ट पे एक्ट हो रहा था, अगर वो स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल और नो बच्चों नो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तब वो ट्रांसवर्सल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग स्ट्रेट ऑन द रोड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी बच्चों. यस. कैन एनीबडी नो more example about this? Yes, he or she can be able to talk with me and I will reply on this comment. मैं उस बच्चे के लिए रिप्लाई करूँगा जो मुझे इस ट्रांसलेटरी की मोर एग्जाम्पल्स बचाएगा. फास्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. यस. नाउ बच्चों अपन बात करते हैं जो अपना सेकंड टॉपिक था. या बच्चों सेकंड टॉपिक है वो है अपना रोटेटरी मोशन. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट not all students know, and this is finding a problem for this rotatory. This is very important. Motion of an object along with a circular path. Yes, this is a simple language, guys. For example, we see when the earth, yes, sorry, my drawing is very weak, is revolving. Yes, revolving around the sun. Yes, this is the example of circulatory motion, or whether it's called the circulatory motion. Yes. Now the third example of this is motion is oscillatory motion. Yes. Oscillatory motion क्या होता है बच्चों? Oscillatory is the to and fro motion of an object called oscillatory. Yes. For example of oscillatory we take as yes, right. Pendulum, स्विंग, जो हमारे यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे गेम्स के लिए पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे यहाँ झूला कहा जाता है, जिसे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. मीन्स व्हेन द एज वी शोन इन द डायग्राम दैट व्हेन द पेंडुलम causes a to and fro motion, means it is completing a proper frequency of it. Means a pendulum is completing its to and fro motion. It is an example of oscillatory motion. Yes, simple. The to and fro motion of the pendulum is called oscillatory motion. Yes, it is clear. Yes. My fourth example of motion is periodic motion. जैसे कि अपन को मालूम नहीं है, जो बच्चे जो मुझसे जो जैसे कि मेरा पहला लेक्चर है, या जो बच्चे मेरे लिए नेचर से वाकिफ़ नहीं हैं वो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए. गाइस, आई प्रॉमिस टू यू दैट ऑल डाउट इज़ क्लियर्ड बाय मी एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम फाइंडिंग फॉर एनी बोर्ड. एनी लेक्चर इज़ नॉट नेसेसरी बाय हियरिंग माई लेक्चर. ओके गाइस, कीम इन टॉपिक. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी? कैन? यस, राइट इन कमेंट बॉक्स. यस. पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ अर्थ revolving around sun or oscillatory motion which repeats after regular interval. जैसे कि बच्चों जो इज कॉल्ड पीरियोडिक. यस, क्लियर? यस, मैं बताता हूँ. पीरियोडिक मोशन तब होता है जब मोशन ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया. ओके, ऐसा अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया. और ऑसिलेटरी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल.
जो मोशन रेगुलर इंटरवल पे आता है, इसको अपन ऑसिलेटरी नहीं भी बोले हैं बच्चों तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने डिफाइन करने के लिए लिखा है, जो मोशन आफ्टर फ्यू इंटरवल और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो इंटरवल रिपीट होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोशन ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड सन के, तो यस जैसे कि अभी पता है अपन को एक साल में 365 डेज होते हैं विदाउट एडिंग लीप ईयर। यस, this is because of periodic motion, because earth is revolving around the sun. Clear guys? Clear? Now we came on the fifth topic, that is yes, non-periodic means the irregular, just opposite of periodic. ओके ये मैंने हिंट के लिए लिख दिया है, पीरियोडिक के अपोजिट होता है ये। ओके, इर्रेगुलर मोशन मीन्स दैट डजंट केम आफ्टर अ इंटरवल। ओके, that when we talking about that what is the example of this? Yes, whether it can be कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसका एग्जांपल जो कि इरेगुलर हो, जैसे कि अपन लोग बोल सकते हैं कि इरेगुलर क्या होता है, इरेगुलर तब हो सकता है, कब हो सकता है बच्चों, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ इसका। यस, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? सभी लोग इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं, अ स्लोप सरफेस। ओके, एंड आई एम रोलिंग दिस बॉल, समटाइम दिस केम एज दिस एंड या इट केम ऑन ग्राउंड लेवल। When it came on ground level, there is no repetition. That ball cannot be goes upward direction. Means no regular rotatory direction is going on, no sloping direction returning. Means it is at retardation. It is not oscillating upward or not coming after fixed interval. Okay, guys, clear? एक जो अतिरिक्त हमारे पास जो बचता है वो होता है रैंडम मोशन। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा, इट इज़ नेम्ड आफ्टर रैंडम मोशन दैट इज नॉट फिक्स्ड। एट अ प्लेस, जैसे कि मोशन जो एक जगह पे फिक्स ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब अपन सॉलिड सरफेस का डायग्राम बनाते हैं एटम्स में, यस दैट इज सॉलिड, ये सॉलिड है, मीन्स द इंटर सेलुलर और इंटर स्पेस इज वेरी हार्ड with the comparison of liquid. Yes guys, liquid has the far apartment for the movement of atoms around its surface, and it is more, there is more space in gas have a lot space. Yes guys, you are watching, इसमें क्या है बच्चों, स्पेस इंटर ऑरिकुलर जो स्पेस होता है गैस में वो लिक्विड से कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा कम होता है। और द सॉलिड इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ दिस, बट आई डिफाइनिंग यू दैट द कंपेरिजन ऑफ एटम, दैट्स वाई आई एम रेटिंग सॉलिड। इसलिए मैंने सॉलिड लिखा है क्योंकि आप लोग सबसे अच्छे से एटम्स का डायग्राम समझ सकें। यस, दिस इज एटम गाइस, बट फॉर रैंडम मोशन आई एम डिफाइनिंग दीज टू टर्म्स, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड है फार्ट अपार्टमेंट, यानी इसमें जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। लिक्विड हैज़ मोर फार अपार्टमेंट, दैट्स वाई दे आर नॉट क्लोजली सरफेस, दैट्स वाई दे आर very not tightly packed, that is squeezy or more squeezy than liquid. Okay, clear as to guy? Yes, thank you.